Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your reality 3 years from now. What is your life like 3 years from now? इस बारे में reading है. So let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have 4 of Pentacles, pile 2 the World, pile 3 8 of Cups. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑल राइट, अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अभी इन 3 कार्ड्स का पास से स्क्रीनशॉट आएगा. उस टाइम पर आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो एंड यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आईज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड्स यू फील अट्रैक्टेड देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 1 को आपने पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 3 को आपने पिक करना है. ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the 4 of Pentacles card here, or you picked this pile because आपका birthday 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. Let's see कि आपकी life कैसी है 3 years from now. We are gonna time travel here. 3 years from now आपकी रियलिटी कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है, what kind of life you're living, what's your reality like 3 years from now. Let's time travel. Okay, so we have comparison. It says this card literally represents social media. It says that you can literally become an influencer. You can be someone who can influence other people. You are into, many of you can even go into bodybuilding, many of you can literally go into fashion, beauty, designing, beautifying something. Many of you can become this digital designer, if I'm not wrong. That's the someone who designs prints, but again that's like digitally. जो आपके मैरिज के वेडिंग कार्ड्स होते हैं, जो वेडिंग कार्ड्स उसका जो प्रिंटिंग होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है, उस तरह का कुछ क्रिएट करना. बेसिकली डिज़ाइन में, क्लोथिंग में, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, समथिंग विच is related to beauty, वो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं. Many of you are literally going to gym, are getting the dream body already. You guys, some of you are going to gym, so 3 years from now you have that dream body, I see. And you are going to compare yourself with your older version. कि मैं कहाँ था और मैं अब कहाँ पहुँच चुका हूँ या कहाँ पहुँच चुकी हूँ. So like you guys are going to, like 3 years from now you guys are going to compare yourself कि पहले मैं क्या थी, अब मैं क्या हूँ, अब मेरे पास कितना मनी है और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बढ़ गई है. और पहला 3 years from now life was so different. Maybe literally 3 years from now not just your life but other people's life also changes tremendously. People around you, those can be your friends, your cousins, their life also changes and you're becoming more pretty. You're more handsome, more beautiful, I see. And
you're going to feel that, yes, I have come a long way. And yeah, so there is definitely a physical transformation for sure. If you were dealing with some health issue and that health issue went for years, तो आप देखेंगे कि 3 years from now that health issue is not there. It's not there because you have really worked on yourself, you have worked on your body. If you were dealing with some mental health issue that dragged for years, and now like 3 years from now, that's not there in your life anymore, and you're feeling so light and happy and beautiful and handsome, and you're feeling more confident about yourself. So that's wonderful. Then we have fresh start. Fresh start यहाँ पर again ये show करता है 3 years from now you are doing a fresh start in your life. एक ग्लो अप आपका डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है. Here as well we see the glow up. Here as well we see the glow up. We see the tools for glow up as well. So 3 years from now आपका डेफिनेटली एक फिजिकल ग्लो अप तो है, बट वो फिजिकल ग्लो अप इज़ ऑल्सो लाइक मेंटल ग्लो अप, क्योंकि उस फिजिकल ग्लो अप को दिखने में टाइम लगता है. वेरेज जब हम मेंटली कुछ सोच लेते हैं दैट लाइक जब हम डिसाइड कर लेते हैं मन से कि अब मेरे को ऐसा करना और अब ऐसा मेरे को नहीं करना, यू हैव डिसाइडेड समथिंग एंड आप अब उस चीज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करें. लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मे बी एज अ बॉय यू लाइक लॉन्गर हेयर टिल योर नेक, but the society says that having long hair is like you becoming a girl. That's what society says. But you like long hair. If you're a girl and you want to have a boy cut, then society says that no, boy cut is for boys or short haircut is for boys. You should have long hair. So that's the expectation the society have for you, right? So 3 years from now, you're like, I don't care what other things about me. I want to do what I want to do. No one can stop me from doing anything. You have the kind of money to create your dreams, to make your dreams come into practical reality. And having like going for shorter hair, going for longer hair, doing hair color, wearing the clothes which you like, it's like bare minimum. It's not really an achievement, but it's bare minimum. But for many of you, it can be something which you always wanted, but you weren't allowed. So 3 years from now, you're allowed to do whatever you want to do. You are allowed to live your life the way you want to live. So ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. So that's the fresh start. Again, it shows कि mentally भी वो एक fresh start है 3 years from now. You're feeling that जैसे आप जेल से अभी निकले हो and now you're free to do anything and everything. You are going to feel this way 3 years from now. I do feel that you have that kind of money with you to live the life the way you want to live. So ये चीज़ यहाँ नज़र आ रहा है. Something more about pile number 1, their reality 3 years from now. ये तो उनके physical body, mental health in general, उसके बारे में कार्ड ज़्यादा निकल के आए हैं शुरू में ही, बट कुछ और भी अगर हमें पता लगे. So we have mystery card. Let me pull another card for this कि क्या ये mystery है. We have space. Okay. All right. I do feel that you are not an open book. 3 years from now, you are mysterious and you like things to be this way. आपको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत मुझसे बहुत तेज़ हैं. मैं उन जैसी चालाकी वाली इंडिविजुअल नहीं हूँ, और इस कारण टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ आई नीड टू क्रिएट टॉल वॉल्स, टॉल बाउंड्रीज अराउंड मी. And I don't want these people in my life as well. So you have space. Like 3 years from now, you don't have toxic relatives, you don't have toxic people around you, don't have toxic friends around you. And you have a very, very close circle. एक दो दोस्त हैं, उससे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं. And you have a lot of time, you have a lot of space, you have time to do whatever you want to do. And it can even happen. जैसे again, maybe you wanted to do something in terms of getting a LASIK surgery or something. So according to me, because I got a LASIK surgery last year and it was a difficult thing to do. Money wise नहीं, या ऐसा डर नहीं था, थोड़ा nervousness था, but the issue was time. Like you have to give like a week break to yourself to recover. And after that, you can't really wear eye makeup for 6 months. That was not a big problem. But the big problem was कि एक हफ्ते का break. I'm someone who don't take a lot of breaks. And yeah, so creating that space, creating that time was difficult for me.
because I'm someone who's always worked in my life, and I love what I do, so I don't really want to take breaks. All right, so same goes with you, pile number one. Maybe you also want to do something and it requires time, but you don't have that time to give because you have other things on your plate. 3 years from now, you have time, you have space to whatever what you want to do. You are able to do it. So be patient. What you're doing right now, pile number one, it's brilliant, it's great. You will get time to do whatever you want. All right, 3 years from now, there is that space coming in. सांस लेने का समय, you will have, I would say, you will have time to read books, you will have time to watch series, you will have time to do whatever you want to do. Time is really precious, and you will realize this in the next 3 years, pile number one, because maybe next 3 years are going to be extremely busy. Maybe you're doing a lot of hard work, you are fixing your career, a lot of things are happening. 3 years from now, you have things settled. I see settlement है, तो जब settlement है तो time भी है. So you will really value your time, I see, and you're going to become this person who values other people's time as well. And you don't like to entertain people जिनका thought process आपसे different है. You don't like to entertain those people because you have realized that these people suck your energy and you don't want them to do that thing to you again. So आप काफ़ी closed off individual हैं, बहुत ज़्यादा private individual है 1 year from now. Maybe you are also not posting so much on social media about your personal life. All right, and of course, as I've told you, many of you can literally become influencers. Many of you can have Mercury-Mars conjunction, या Mercury can be trine from Mars. All right, या Mercury-Mars 311 प्लेसमेंट में एक दूसरे से, यानी Mercury से तीसरे घर में Mars हो सकता है, या Mercury से 11th हाउस में Mars हो सकता है. एन ऐसी प्लेसमेंट में मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन है जो कि शो करता है दैट येस यू कैन एक्चुअली बिकम एन इन्फ्लुएंसर, यू कैन डू समथिंग ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम. वी हैव एरीज साइन. एरीज अगेन इज अबाउट फिजिकल बॉडी, इट्स अबाउट योर फिजिकल सेल्फ, इट्स अबाउट you are becoming someone who is taking charge. Aries is the sign where sun get exalted, so sun king hai, right? So Aries is basically the सिंहासन of the king. So आपको कोई सीट ऑफ पावर मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 years, और 3 years फ्रॉम नाउ आप उस सीट ऑफ पावर में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हो. मतलब एक होता है कि अभी अभी मतलब आपको पावर मिला है तो यू आर लाइक नेविगेटिंग योर वे इन इट, बट 3 years फ्रॉम नाउ you have the power. Like in the next 3 years you will get the seat of power. कोई promotion, कोई बड़ा position आपको मिलता है, कोई CEO kind of position आपको मिलता है, आप कुछ establish करते हैं. 3 years from now you have already established yourself, so you're very comfortable in that position. You're not feeling overwhelmed, you're feeling comfortable, you're feeling established. You have that seat of power, you're feeling established. And 3 years from now बहुत confidence है आपके अंदर, बहुत confidence है, बहुत ज़्यादा वाला है. तो आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हो, और आपको कोई दबा नहीं सकता है, आपको कोई ऐसे किसी के दबाव प्रभाव में आप नहीं आते हो. आप दूसरों को ज़रूर अपने उसमें प्रभाव में ले आते हैं, आप दूसरों को ज़रूर अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हो, बट यू विल नॉट लेट अदर पीपल मैनिपुलेट यू फॉर श्योर. एंड हेयर आई डू सी अगेन, जैसे एरीज फिजिकल बॉडी है तो फिजिकल फिटनेस आपके अंदर काफ़ी नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफ़ी नज़र आ रहा है, एंड यू विल फील दिस वे 3 years फ्रॉम नाउ. इफ़ यू लुक गुड यू विल फील गुड. ये फॉर्मूला आपके लिए वर्क करता है, ये हर किसी के लिए नहीं वर्क करता, पर ये आपके लिए ज़रूर वर्क करता है. इफ़ यू लुक गुड यू विल फील गुड. आप ऐसा महसूस करेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट व्हेन यू लुक गुड पीपल रिस्पेक्ट यू. क्योंकि अब राजा है, राजा अगर फटे पुराने कपड़े पहनेगा तो उसको राजा कोई मानेगा ही नहीं. जब तक कि वो अपना रॉयल जो कॉस्ट्यूम है वो ना पहने तब तक उस राजा की भी कोई इज्जत नहीं है. ऑल राइट, सो दुनिया आज की ऐसी है कि सक्सेसफुल होने से भी ज़्यादा सक्सेसफुल दिखना पड़ता है, एंड यू विल रियलाइज दिस. So you're treating yourself like a royalty. You will actually learn in the next 3 years how to treat yourself in a royal manner. कपड़े अच्छे पहनो, अपने बाल सेट रखो, आयरन कपड़े पहनो, बाहर जा रहे हो तो तैयार होके ही जाना है, ऐसे ही नहीं निकल जाना है. चाहे दुनिया जैसी मर्जी है, हम अपना एकदम राजा की तरह शान से रहते हैं. इस टाइप की चीज़ें आप सीखेंगे नेक्स्ट 3 years में.
सो 3 years from now बहुत एक पर्सनालिटी में बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव है, क्योंकि आप अच्छे कपड़े पहनते तो आप जिस तरीके से बात करते हैं वो तरीका भी बहुत रॉयल हो जाता है. ऑल राइट, सो या दिस इज़ समथिंग विच आई सी. देन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं आपके करियर के बारे में पहले, फिर फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट करियर, वी हैव 4 of cups. 4 of cups here shows me 3 years, like we see the 3 cups, 4th one is coming. Next 3 years में you're figuring out life, you're figuring out your career, that what I need to do, how I need to do it, how can I establish this, how can I start something of my own. Like you are starting from scratch in the next 3 years. किसी चीज़ का बहुत एक शुरुआत आप कर रहे हैं. मे बी यू हैव योर ओन जॉब, आई एग्री, येस दैट कैन हैपन. और मैनी ऑफ यू में स्टार्ट टू अर्न मनी इन द नेक्स्ट 3 years. पहली बार अर्निंग आप नेक्स्ट 3 years में करेंगे. लाइक यू आर इस्टेब्लिशिंग समथिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन एंड यू आर फिगरिंग आउट कि कहाँ से मैं रॉ मटेरियल लूँ या कहाँ से मैं क्या चीज़ लूँ, कम मेरे को प्राइसेस में चीज़ें मिले. यू आर फिगरिंग आउट थिंग्स एंड यू हैव दैट स्ट्रेस. एंड 3 years from now you will have everything figured out. You're going to be comfortable in what you're going to do. 3 years from now you understand कि आपका गोल क्या है, तो ये नज़र आ रहा है. Something more about career. So we have 5 of swords. 5 of swords here shows that you will realize that you can't make everyone happy. All right. और आपकी कोई ये है नहीं, मतलब आपने ठेका नहीं उठाया हुआ दुनिया के लिए कि भाई आपको सभी को खुश करना है. एट टाइम्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग टू बी पीपल हु आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी फॉर मी. इवन इफ आई पुट माई स्कल इन फ्रंट, दे वोंट बी हैप्पी. सो आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं विद द 5 of swords कि जो आपका मन करता है करियर में, या जो आपका मन कहता है, आपका दिमाग कहता है ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वैसा वैसा ही आप करेंगे और कुछ वंडरफुल ज़रूर आप क्रिएट करेंगे. आप अपना रिसर्च भी आप कर चुके हैं 3 years में कि कैसे क्या करना है, एंड यू विल स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट एंड यू आर गोना डू वंडर्स. दे आर गोना बी कंपेटिटर्स अराउंड यू who may not be happy with the formula you have created, from the thing you have created, because you are giving them a tough competition. But you are doing something wonderful and you are becoming master of something in terms of career in the next 3 years. So that's what we are getting. About your finances, we have 5 of Pentacles. 5 of Pentacles ये show करते हैं next 3 years में you may have you will learn this thing that कौन आपका सही दोस्त, कौन सच में दोस्त है. सच्चा दोस्त वही जो आपकी मुश्किल में मदद करे, है ना. तो दे आर गोना बी पीपल जो आपको छोड़ के भी चले जाएंगे आपके मुश्किल टाइम में, आपके टफ टाइम्स में, एंड यू विल जस्ट हैव लाइक 1 or 2 friends with you and that's it. And you will realize that yeah, these are the real friend, these are my real people. तो छटाई होगी फ्रेंड्स में कौन सा सच्चा दोस्त है. और 5 of Pentacles का यही शो करता है कि रैग्स टू रिचेस आप जाओगे. 5 of Pentacles शोज़ बैड हेल्थ से गुड हेल्थ में जाना. इट शोज़ कि बहुत पॉवर्टी से बहुत पैसों की तरफ जाना, रिचनेस वेल्थ की तरफ जाना. इट्स अबाउट दैट ट्रांसफॉर्मेशन कि क्या 0 लेकर आए थे और 100 तक जाते हो या इन्फिनिटी तक जाते हो. मतलब 5 of Pentacles is the process of going towards wealth, towards good thing, towards love, towards good health. So 5 of Pentacles is a processing card. So 5 of Pentacles ये show करता है next 3 years is about going from rags to riches. It's actually it is showing कि आपकी जो expectation है money wise उसको भी cross कर जाना, उस expectation से भी ज़्यादा earn कर लेना. Alright. So आप बहुत अच्छा कर रहे हो. You are gonna be that person जो परिवार को रैग्स टू रिचेस लेकर जाएगा, लेकर ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटस लिटरली ट्रांसफॉर्म होता है 3 years फ्रॉम नाउ. अभी से 3 years फ्रॉम नाउ को कंपेयर करें तो लिटरली फाइनेंशियल स्टेटस it is transforming into something good, into something better. You're becoming wealthier. You may even have this kind of money to actually buy your own home 3 years from now. घर लेना कोई छोटी बात नहीं है. All right, so it does shows that you have that kind of money to buy your home. It's not a small thing. It's not a small earning which you're doing in the next 3 years. A big earning. Then we have Page of Pentacles for your personal life.
So Page of Pentacles here does shows that in your personal life 3 years from now, you have time to travel, you have time to plan things out, you have time to actually I would say decide. You have this क्या कहें, एक freedom to decide what you want to do, how you want your day to go. You have that kind of freedom. And you're a real person. Page of Pentacles show करता है that you're a real person. You are not someone जो एक चेहरा लगाकर पर्सनल लाइफ में भी घूमेगा. मतलब कई लोग होते हैं, यू विल नो सम पीपल इन योर फैमिली एज वेल और इन योर फ्रेंड सर्कल, जो रियलिटी में है दे वोंट शो दैट टू अदर्स बिकॉज दूसरे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उनके कुछ और रीजन्स भी हो सकते हैं. बट लाइक यू आर अ वेरी 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 रियल पर्सन. आप उन्हीं लोगों को अपने घर बुलाते हो जिन लोगों से आपका दिल मिलता है. अदरवाइज यू डोंट लेट पीपल एंटर योर होम ईजिली. नो. एंड योर होम इज़ योर सेफ प्लेस. सो यू डोंट रियली अगेन मेक एनीबडी who makes you uncomfortable enter your home, enter your safe place. And you don't want to create a new face for yourself to show to the world. मतलब आप वो हो जो हो. All right. So you're a very real person. And that's why there are very few people around you. There are not many people around you. Because you realize that you are not born to do people pleasing. So you have realized that. So बहुत अगेन आपका सर्कल कम है. एट टाइम्स आप बोर हो जाओ कि इतना मतलब अपने पीस ऑफ माइंड को बचाने के लिए आपने इतने लोगों को कैंसिल आउट कर दिया अपनी लाइफ से. सो नाउ यू आर बोर्ड, बट यू विल लाइक दैट बोरिंग टाइम एज वेल बिकॉज आप क्लाउड्स को देखते हैं, बिकॉज आप कुछ अपनी सीरीज़ देखते हैं, आप सो जाते हैं, आपके पास टाइम है एज़ कम्पेयर टू अपने आप को किसी ड्रामा में फंसाना. सो यू लाइक दैट पीस क्वालिटी वाला टाइम. दैट्स वंडरफुल. अबाउट योर health, mental and physical health, we have Seven of Wands. Seven of Wands here shows me that there are some past things. past में बहुत सारे लोगों ने आप पर उंगली उठाई and they were wrong, you were right. Truth eventually came out, but the trauma you went through, you still remember that 3 years from now. You still remember it. And something more about this. We have 8 of Swords. At times you feel like 3 years from now also that maybe I again need to work on my mental health. I again need to do something for my betterment of mental health. You're still recovering from certain things which happened in the past. And Knight of Swords shows that you will like to cut those memories out so that आप mentally अच्छा feel करें. So घाव जो है वो काफ़ी deep है. ऑलराइट, जो चीज़ें पास्ट में हुई वो काफ़ी दुख देने वाली थी. 3 years फ्रॉम नाउ यू स्टिल रिमेंबर इट. ऐसा थोड़ा ना हो गया कि आप बिल्कुल ही बदल गए, ऐसा नहीं है. यू स्टिल रिमेंबर द पास्ट, यू स्टिल रिमेंबर दोज टाइम्स वेयर पीपल शाउटेड ऑन यू और इवन इफ यू वर राइट दे वर रॉन्ग, स्टिल दे अक्यूज्ड यू and at times you were accused of certain things which you didn't even do. You didn't did those things, but still लोगों ने उंगली उठाई आप पर एंड यू फेल्ट वेरी हेल्पलेस. दैट फीलिंग ऑफ बीइंग हेल्पलेस स्टिल मे ईट यू आउट. बट 3 years फ्रॉम नाउ you may go for therapies or you yourself may go for healing, self healing itself. तो आप इन चीज़ों पर भी फोकस करते हैं. 3 years फ्रॉम नाउ यू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ. देखिए, मेंटल हेल्थ पर फोकस करना हर किसी की बस की बात नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है. क्योंकि हमें मनी भी अर्न करना है, हमें अपना करियर भी सेट करना है, हमें ऑफिस पॉलिटिक्स को भी संभालना है, हमने अपना कुछ नया भी करना है, हमें परिवार भी देखना है, हमारा और 100 काम है. इसके अंदर मेंटल हेल्थ कहीं फिट नहीं बैठती है. 3 years फ्रॉम नाउ लाइफ सेटल्ड है, लाइफ बहुत सेटल्ड है. तभी आपके पास पास्ट को सोचने का टाइम है, तभी आपको पास्ट को हील करने का टाइम है. सो 3 years फ्रॉम नाउ यू आर स्टिल ट्राइंग टू हील योर सेल्फ and want to make a better version of yourself. और आप वो इंडिविजुअल हैं जो हर साल अपने आप को अपलिफ्ट करते चले जाते हैं, अपने आप को बेटर करते चले जाते हैं, अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाते चले जाते हैं. तो आप हर साल या हर महीने बदलते ही रहते हैं, बेटरमेंट की तरफ ही जाते जाते हैं. आप स्थिर इंडिविजुअल तो बिल्कुल भी नहीं हैं.
आप चेंजिंग, एवर चेंजिंग इंडिविजुअल हैं। और ये जो आपकी एनर्जी है ना एवर चेंजिंग वाली, ये आपको एवर लास्टिंग बनाती है, आपको हमेशा नया रखती है, इन ट्रेंड रखती है। या कहते हैं कि समय के साथ जो बदलता है वो बढ़िया, जो समय के साथ नहीं बदलता उसको समय ज़बरदस्ती बदल देता है। अब वो इंडिविजुअल है जो समय के साथ ऑटोमेटिकली बदलते हैं, समय को आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है। तो यू आर समवन हु चेंजेस विद टाइम, यू आर नॉट समवन जो दकियानूसी ख्यालों वाला है। आप समय के साथ चलते हैं, मॉडर्न माइंडसेट के, ब्रॉड माइंडसेट के ये दिखता है। सो यही चीज़ें आपको एक बेटर पर्सन बनाती हैं और लाइफ को काफ़ी बदलती हैं, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक लेकर जाती हैं। सो यही वो कारण है। कुछ और चीज़ें 3 years फ्रॉम नाउ अगर हमें पता लगे, सो वी हैव फॉरगिवनेस। सो इट सेज आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवन। सो यू आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ, यू आर डूइंग समथिंग फॉर हीलिंग, ऑल राइट। सो you guys are buying some crystals. देखिए जो थेरेपी पे भी जो लोग जाते हैं पैसे वाले ही जाते हैं, थेरेपी बहुत महंगी है, पैसे वाले लोग ही जाते हैं। क्रिस्टल कौन खरीदता है? पैसे वाले लोग खरीदते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के पास कौन जाता है? पैसे वाले लोग जाते हैं। येस, दैट्स द रियलिटी। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट फॉर मिलियनर्स, इट्स फॉर बिलियनर्स, बिलियनर्स। तो वो ये भी अमीरों की चीज़ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो एक मध्य स्तर का इंडिविजुअल होगा वो जो है अपने वो कहेगा कि मेहनत करके जो है हमें आगे बढ़ना है, उनको यही सिखाया जाता है। वेयरएज़ जो थोड़ा रिच माइंडसेट का है वो कहेगा मेहनत करके कुछ नहीं होता है ज़्यादा। और सच्चाई की बात है, अगर मेहनत करके कुछ होता तो गधों के पास तो बहुत पैसे होते हैं, गधे तो बहुत अमीर होते, सारे गोल्ड लदा फदा होता गधा भी। पर मेहनत से इंसान हर चीज़ नहीं पा सकता है, ये बात सच है। तो पर मेहनत करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मेहनत से हर चीज़ नहीं पाई जा सकती, पर मेहनत करना इज़ इम्पॉर्टेंट। हार्ड वर्किंग होना इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्किंग नहीं बनते तब तक आप स्मार्ट वर्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो स्मार्ट वर्क के लिए हार्ड वर्क से गो थ्रू होना पड़ता है। So what I want to say is that you are taking care of yourself because you have time to take care of yourself. You have time to give to yourself. Time का बहुत गिफ्ट है आपको 3 years from now. और आप कुछ कर रहे हैं ऐसी चीज़ें जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखते हैं, and you're forgiving yourself, you're also forgiving other people and moving on in life. Then we have commitment. So 3 years from now, maybe you are in a romantic relationship, you may even get married. If you're single, ready to mingle, 3 years from now, you can get, actually, you guys can get married. If you're already married, then, or you're already in a romantic relationship, then your relationship with your partner, it improves tremendously. You guys become more closer. And the swans here shows that you guys are, you guys have this pure love between you two. मतलब प्योर लव यानी कि इसमें कोई चालाकी नहीं है, इसमें कोई एक दूसरे से ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ प्यार है, ऐसे अटैचमेंट नहीं है। लव और अटैचमेंट में बहुत फ़र्क है। लव जो है सुकून देता है, अटैचमेंट जो है दुख देती है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ लव बिटवीन यू, आई सी। We have life purpose. So you are actually fulfilling your purpose 3 years from now. You're feeling that your heart is full with love and you are doing something through which your life purpose is getting fulfilled. Somehow many of you are going into NGOs, helping other people out. और जो भी आपका life purpose है, जो आपको लगता है कि this is my life purpose, you are working on that. Alright, maybe आपका life purpose बहुत ज़्यादा expensive है. Alright. So now, like 3 years from now, you have that kind of money to actually fulfill your life purpose. Your heart is full of love. So that's why I said that many of you may join NGOs, are giving big donations. All right. Doing something humanitarian. So ये चीज़ें आप कर रहे हैं. So that's wonderful. ऑल राइट. सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो मैंने कहा मार्स मर्करी कंजंक्ट हो सकता है. मार्स मर्करी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. यू गाइस कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर हेयर.
और जैसे इवन जो साइन एरीज़ है, एरीज़ का साइन है, लिब्रा का साइन है, स्कॉर्पियो का साइन है, वर्गो का साइन है, ये भी मेरे को प्रोमिनेंट लग रहा है क्योंकि यहाँ इन साइंस में भी प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज़ में अश्विनी, भरणी, कृतिका. वर्गो में वी हैव उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा. चित्रा स्पिल करता है. लिब्रा में स्वाति, विशाखा. विशाखा स्पिल करता है. स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवांशा चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. आपका आत्मा कारक प्लानट, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज सिग्निफाइंग यू. 30 डिग्री से क्लोजर वाला प्लानट वो मार्स हो सकता है या सन हो सकता है या वीनस हो सकता है. इनमें से कोई प्लानट आत्मा कारक का प्लानट होगा. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the world card here, or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31st को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. We are gonna time travel 3 years from now. वैसे you are someone, pile number 2, जिसका ना कभी नींद ही नहीं पूरा होता है. You always feel like I need to sleep more. You like to be in bed and yeah, कभी नींद पूरी नहीं होती है. So let's get started with your reading. How life is 3 years from now, your reality 3 years from now. Let's time travel. Pile number 2. Okay, we have sneaky. All right. Okay. We have flow card. Wonderful. You're letting yourself loose. You're not on a tight schedule. You have time to breathe. You have time to relax. I see 3 years from now you're going to vacations. You're traveling a lot. You're going to luxury resorts. You have time to स्लीप. ऑल राइट. और कोई जैसे होता है ना कि अलार्म लगाया हुआ है 7:30 का, 6:30 AM का या 4:30 AM का. ये जो अलार्म्स हैं ये नहीं लगे हुए 3 years from now. Like you can wake up any time of the day and you will not have to worry about a thing. You don't have to worry that I have to catch up with the world and all. ऐसा नहीं होगा. या मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरी बस छूट जाएगी, मेरी कैब छूट जाएगी, ये चीज़ें नहीं होगी. यू आर नॉट रियली ऑन अ स्केड्यूल 3 years from now. जैसे रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, ऐसा कोई अलार्म लगाने का ज़रूरत नहीं होता. रिलैक्स्ड लाइफ चलती है. Many of you may literally get retired after 3 years. या फिर it can happen irrespective of your age, pile number 2. You're living a retired life. Of course, you will work. Some of you definitely will work, or many of you will definitely work, but you won't have to be on time. Time जो है, you can do your work any time of the day and still it will be appreciated. ये यहाँ पर दिख रहा है. Then we have dwelling in truth. It says I stand in the light of truth. So it does shows कि जो आपका रियल सेल्फ है वो बाहर निकल के आता है 3 years from now. जो आप रियलिटी में चाहते हो वैसा आप कर पाते हो 3 years from now. जैसी रियलिटी जीना चाहते हो वैसी रियलिटी आप जी पाते हो. Simplifying your life, I cherish the simple pleasures of life. It shows कि 3 years from now you are living in a minimalistic home. You have simplified your life. जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती थी निकाल ही दी आपने अपनी जीवन से. मेहनत करके कोई अमीर नहीं बनता है. मेहनत से हर चीज़ नहीं पाई जा सकती है.
मेहनत करना अच्छा है, बट अगर सोचो मैं उससे बहुत बन जाऊंगा कुछ, ऐसा नहीं है। इतनी ही मेहनत कोई करता और बहुत अमीर हो जाता तो गधे आज बहुत अमीर होते, है ना। गधे जो है लदे फदे घूमते गोल्ड सिल्वर से जो भी, पर ऐसा तो नहीं है। मेहनत करना इज़ अ गुड थिंग, बट मेहनत से हर चीज़ मिलना it's not real. So you have realized that there are certain things maybe I'm not good at, and there are certain things which I am really good at. So you are putting effort towards a thing जिसमें आप सच में बहुत 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 अच्छे हो, और जिन चीज़ों में अच्छे नहीं हो उनको आप बांट देते हो दूसरों के भी, तुम कर लो। आप शायद रोजगार भी दो दूसरों को। 3 years from now you are like giving employment to other people. Maybe right now you are trying to get employed somewhere, but 3 years from now you are giving employment. You are giving jobs to other people because it helps you to simplify your life. You have that kind of money with you to give jobs. And 3 years from now you like to be a homebody. Matlab you will like to spend more time at your home, in your home. You may even have a swimming pool at your home. This can happen. Everything is possible, pile number 2, in this DNA age we are living in. We are in the DNA age of Rahu. Anything and everything is possible. Rahu is extravagance. Rahu extravagant चीज़ों को represent करते हैं। देखिए वीनस लग्जरी है, बट उससे भी मतलब डबल ट्रिपल लग्जरी राहु लेकर आता है। Venus is like wearing an expensive टी-शर्ट जिसका छोटा सा लोगो हो, बहुत छोटा सा लोगो कहीं पर, शायद वो दिख भी ना रहा हो। और राहु होता है जो ऐसे कपड़े या ऐसे पर्स बैग जिसका लोगो उस पर अच्छे से प्रिंटेड है, बड़ा बड़ा लोगो बना हुआ है। दूर से कोई कह सकता है हाँ ये इस ब्रांड की इसने पहनी हुई है टी-शर्ट या पर्स इस ब्रांड का है। राहु दिखावा भी है, पर राहु बड़ी एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें हैं। सो देर इज़ दिस राहु एलिमेंट फॉर श्योर, आई फील इन योर रीडिंग पाइल नंबर 2, कि आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी रहे हो। यू मे लिटरली हैव अ स्विमिंग पूल एट योर होम, दिस कैन हैपन, एंड you are wearing those name brand clothes, name brand watches, and you are somebody जिसको कम चीज़ें पसंद है पर क्वालिटी की चीज़ें पसंद है। आपका घर भरा नहीं हुआ चीज़ों से because you just don't like that kind of home decor. You like minimalistic things. Minimalism आपको पसंद है, और वही चीज़ आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हो। मतलब आपकी ज़िंदगी में कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं, जितने मुँह उतनी बातें। यू डोंट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, you just have like couple of friends and that's it, because you're comfortable with them only, and you're sleeping a lot. 3 years from now you have time to sleep, you have time to rejuvenate, you have time to rest, you're taking your beauty sleep. All right, your body, your skin, it's literally glowing. If you were dealing with hair fall, 3 years from now you don't have hair fall. मतलब जो बड़े बड़े गुच्छे बाल के निकलते हैं वो अब 3 years from now ऐसा नहीं है। You have hair, you have good hair on your head. All right, and you guys are gonna buy good materials, silk, मलमल का कपड़ा, इस तरह के कपड़े, क्वालिटी की चीज़ें, ये आपको बहुत अच्छी लगेंगी। and these are expensive things, so you will be able to buy them. सिंप्लीफाई करते चले गए हो आप अपनी लाइफ को, और जितना आप सिंप्लीफाई करते चले गए हो, यू हैव रियलाइज कि मैंने अपनी लाइफ को समय दिया है। मतलब अब आपके पास समय है क्योंकि आपने सिंप्लीफाई कर दिया अपनी लाइफ को। सो हैव टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। जो टाइम शायद किन्हीं और चीज़ों में वेस्ट हो जाता था, अब उन चीज़ों को निकाल दिया आपने अपनी लाइफ से। तो यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, यू हैव टाइम टू स्लीप अ बिट एक्स्ट्रा। वी हैव जुपिटर हियर, इट सेज लक। जुपिटर भी एक्सपेंशन है, बट इट्स अ positive expansion. Rahu is expansion till something explored. Jupiter expansion in a good way. So Jupiter यहाँ पर यही शो करता है कि आप ज्ञानी इंडिविजुअल हो, वाइज इंडिविजुअल हो, and you're flying. 3 years from now you're flying high. आपके पर निकल आए, आप उड़ना शुरू कर चुके हो और आप बहुत खुश हो। ग्रोथ लाइफ में बहुत है, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ती है क्योंकि करियर आपका बहुत अच्छा चलता है। आप अपने आप को एक्सपैंड कर पाते हो, अपने करियर को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हो। 3 years from now you have your own business, ये दिखता है। Even if let's say maybe you're right now in jobs, 3 years from now you have your own business and you have expanded that business to maybe even in foreign lands and foreign countries. And I do see that
देयर इज़ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ. जुपिटर अबंडेंस का कारक है, अबंडेंस को सिग्निफाई करता है. तो यू आर फीलिंग अबंडेंट. इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट अ थिंग विच यू कैन बाय फ्रॉम अ शॉप, इट्स अ थिंग विच यू फील. सो यू आर फीलिंग वेरी अबंडेंट. लक इज़ डेफिनेटली ऑन योर साइड. आप काफ़ी लकी महसूस करेंगे 3 years फ्रॉम नाउ. ये दिखता है क्योंकि आप जैसा जैसा चाहते थे वैसे वैसी चीज़ें हो गई है आपकी लाइफ में, तो बहुत अच्छा फील करते हैं. दैट्स वंडरफुल. यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हम पुल करते हैं अबाउट योर करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ. सो करियर को लेकर पाइल नंबर 2 का करियर 3 years फ्रॉम नाउ कैसा है? ओके, वी हैव द पेज ऑफ कॉइन्स. पेज ऑफ कॉइन्स इज बेसिकली पेज ऑफ पेनिकल्स. ये पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था. ये रहा पेज ऑफ पेनिकल्स, यही कार्ड आया था. सो सिमिलर एनर्जी. सो पेज ऑफ कॉइन्स here shows me कि आप बहुत नॉलेजफुल हैं. 3 years from now you have the knowledge or wisdom about your career, about like you are a perfectionist in your career. You are the most knowledgeable individual in terms of your career, in your field. You know what you are doing. I do feel many of you can become a surgeon 3 years from now. वैसे सर्जन्स की लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती, स्पेशली इफ़ यू आर इन मेडिकल फील्ड. तो बहुत ये ईजी नहीं होती है, बहुत एक टाइट स्केड्यूल पर चलना पड़ता है. दिस हैपन्स. बट स्टिल इवन इफ़ यू आर लाइक बिकमिंग अ सर्जन, तो ये चीज़ें एज़ कम्पेयर टू अदर सर्जन्स, आपकी लाइफ में ये चीज़ें जो अभी हमने बात करी, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी स्टिल एज़ कम्पेयर टू अदर सर्जन्स. बट पेज ऑफ कॉइन्स हेयर शोज that you know what you are doing, and that's why people will come to you and will like to work with you because they know what you are doing. They have this trust on you. 3 years में आप अपना एक फेस वैल्यू बनाते हैं मार्केट प्लेस पर. आपका एक फेस वैल्यू है. यू आर द ब्रांड. ऑल राइट. सो इट शोज के यू नो वॉट यू आर डूइंग, सो पीपल लाइक टू वर्क विद यू ओनली. बिकॉज देखिए, काम तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, है ना, उस फील्ड में, पर आप जैसा कोई नहीं कर रहा है. एंड पीपल नो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, सो पीपल लाइक टू वर्क विद यू मोर. दे फील दैट यू आर वेरी नॉलेजफुल. एंड आई डू फील दैट 3 years from now you are someone who is still studying, who is still upgrading yourself. आप रुकने वालों में से नहीं हो. आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो. यू आर गेटिंग अ कोर्स एंड यू आर लाइफ लॉन्ग लर्नर, ऑलवेज लर्निंग समथिंग और द अदर. अप टू डेट आप रहते हो अपने करियर को लेकर. इस वजह से यू आर डूइंग रियली अमेजिंग, डूइंग द बेस्ट इन योर करियर. देन 8 of Cups का कार्ड है. 8 of Cups आपके फाइनेंसेस को शो करता है, और ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी कार्ड आया जो कि अगेन आपके फाइनेंसेस के लिए आया है. 8 of Cups मुझे दिखा रहा है 3 years फ्रॉम नाउ यू हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ अंडर योर नेम. मतलब नेक्स्ट 3 years में यू विल बाय प्रॉपर्टीज़. इट कैन हैपन हर साल आपको एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, छोटी बड़ी जैसी भी आप प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो. तो 3 years फ्रॉम नाउ you will see that yes, I have I have gold, I have silver, और I have lot of properties with me. So आप अंदर से एक बहुत कॉन्फिडेंस आप फील करते हो. मनी डज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस. सो बड़ा ही कॉन्फिडेंट आप फील करते हैं, और आप बहुत सिंप्लिसिटी से भी रहना पसंद करते हैं. पीपल मे नॉट फील दैट यू आर सो रिच बिकॉज यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल्ड इंडिविजुअल, एंड बहुत सिंपल वे में आप रहना पसंद करते हैं. So people may not even realize that how rich you are, how wealthy you are. People will know that you are earning really well, but they don't really exactly know how much you are earning. Because आप बहुत simple कपड़े पहनते हो. Although you do buy name brand clothes, name brand watches, but you are also somebody who likes to be simple in terms of daily life, simple clothes and all. So comfort over fashion ये नज़र आता है. We have page of swords as well for your finances, which shows me that आप finances का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं. जैसे कि अभी के टाइम पर गोल्ड से भी ज़्यादा इफ़ यू बाय सिल्वर राइट नाउ, तो अगले साल फरवरी मार्च तक वो सिल्वर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हर चीज़ जो है सिल्वर की बनेगी. हर चीज़ में सिल्वर यूज़ होता है, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्यों ना हो, फ़ोन वगैरह ही क्यों ना हो, आपकी कोई और चीज़ें क्यों ना हो, सिल्वर यूज़ होगा या सिल्वर ऑलरेडी यूज़ हो रहा है.
और क्योंकि इंडिया इज़ गोना बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब, तो यहाँ पर ये मेटल्स जो है बहुत सारे यूज़ होंगे, इनका वैल्यू बढ़ेगा, सिल्वर का भी बहुत, गोल्ड का तो ऑब्वियसली है ही, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गोल्ड नीचे नहीं आने वाला, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा फिर अब चला जाने उसने, तो वो तो ऑलरेडी अब जा चुका है। बट राइट नाउ ऑल्सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन सिल्वर, तो नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च तक ही आपको उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपको देगा कि ये तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो रुकना नहीं चाहिए आपको, अभी मनी इन्वेस्ट करने का समय है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो जो ये आर्म्स के स्टॉक्स हैं, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये बहुत महंगे हो जाएंगे आपकी, अगेन उसमें बहुत सारा मनी आपका बन जाएगा, बनेगा ही बनेगा, बन जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है, मे बी राइट नाउ यू आर टेकिंग नोट्स वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी। So like this person is taking notes. So 3 years from now, you have invested your money in a wise manner. That's why 3 years from now you have a lot of money. पैसे से पैसा आप खींच रहे हैं, ये दिखता है। मेहनत नहीं कर रहे हो उसके लिए, पर पैसे से पैसा खींच रहे हैं, दिख रहा है। You're becoming the money magnet. Page of Swords ये शो करता है भाई दिमाग वाले इंसान है, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क आप जानते हैं करना, और आपने हार्ड वर्क करा है, इस वजह से आपको पता है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। लेजी तो नहीं है आप, डेफिनेटली नहीं है, यू आर समवन हु इज़ डूइंग हार्ड वर्क, बट यू ऑल्सो रियलाइज हाउ टू मेक दिस हार्ड वर्क इन टू स्मार्ट वर्क, सो दैट आई सेव माई टाइम, आई कैन डू अदर थिंग्स एज वेल, है ना। तो 3 years में ये सब चीज़ें आप करते हैं। देन अबाउट योर पर्सनल लाइफ, ओके, we have the moon card. Moon card here shows me in personal life you like to meditate, you'd like to take salt bath, you like to see, if somebody told me, Akshita, you're going to take salt bath, you're going to do meditation, you're going to do crystal healing, you're going to go into tarot, mysticism, astrology, if someone told me this 10 years ago, I would have said that please मेरे को ये चीज़ें पसंद है, but I won't do it in my real life. Yeah, I was that kind of person. I had interest in astrology, especially astrology, not even tarot or anything. Astrology since I was 11 or 12 years old, because like my father influenced me in these things. So तब से था, but if someone told me that I'm going to do this for a living, I would not have believed them. And at that time I wanted to do something else, maybe become an astronaut or what. बचपन के तो यही ख्याल होते हैं ना। एस्ट्रोनॉमी में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, प्लैनेट्स में इंटरेस्ट था, जैसे मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था। मेरे को क्या पता था ये प्लैनेट्स की जगह एस्ट्रोनॉट बनने की जगह आई विल बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, like I had no idea about it. So I never believed in this, you know. But then with time, when I tried all these things, it made sense to me. It may not make sense to some people, I agree, but it can definitely make sense. These things can definitely make sense to some people for sure. Astrology, tarot, mysticism, इन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ. And I also didn't believe in Reiki healing, but recently I found someone who does Reiki healing and they are doing an amazing job. Literally they are doing an amazing job. So हाँ, कुछ ऐसी forces होती हैं जो मतलब इफ़ेक्टिव है, मतलब आप मेडिसिन से भी ज़्यादा है। नेवर थॉट दैट रेकी हीलिंग इज़ अ थिंग, कि मतलब सच में कुछ हो सकता है इससे, कि ये एक रिप्लेसमेंट हो सकता है आपकी कन्वेंशनल मेडिसिन का। बट वेरी फ्यू पीपल नो दिस, वेरी फ्यू पीपल रियली नो रेकी हीलिंग एंड ऑल, और हाउ टू टैप इन टू अदर डायमेंशन। मतलब बहुत बहुत कुछ परसेंट को पता है, 0.0 समथिंग परसेंट को पता है। And when you get to meet those people, you're shocked to your core. So these things does exist. You just need to go to the right person. That's a thing. So yeah, with the moon card here in your personal life, file number 2, you are someone who is talking about healing, talking about crystals, maybe even gifting crystals to your loved ones, to your family members. Expensive crystals, and maybe booking some astrology tarot consultations for yourself or for your loved ones, because you just saw the power of it and
Yeah, so in your personal life, you're really into these kind of things. Really you're in these kind of things. मैं जब भी when I was again I'm talking about my childhood, but बचपन में मैं ये सोचती थी जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या जो रेकी हीलर्स के पास जाते हैं, रेकी हीलर तो मेरे को उस टाइम पता नहीं था, पर जो टेरो कार्ड रीडर्स के पास भी जाते हैं, दे आर लाइक रियली रिच पीपल. मेरे को याद आते थे कोई ऐसी एक फ़ीमेल जिसने बड़ी सुंदर नेल पेंट लगाई हुई है, बड़ी बड़ी रिंग्स पहनी हुई है, क्रिस्टल वाली बड़ी बड़ी रिंग्स पहनी हुई है, एंड दैट लेडी इज़ कमिंग आउट ऑफ हर मर्सिडीज और समथिंग एंड गोइंग टू दैट फॉर्च्यून टेलर और समथिंग. Like that, someone like that. So, you know, like you are becoming that. I don't know what I'm saying, it making sense to you or not, but it does make sense to me. So, you're becoming that lady or you are becoming that man who is doing so. मून कार्ड मेरे को यही दिखाता है कि आप अपनी एनर्जीज़ पर बहुत वर्क करते हैं 3 years from now. मून कार्ड ने यहाँ पर कोई ऐसे लव रोमांस की बात नहीं कर रहा है, तो आई कांट रियली से अबाउट लव रोमांस क्योंकि उसका इंडिकेशन आया नहीं है रीडिंग में, तो मैं धक्के से फंसा नहीं सकती यहाँ पर ये चीज़ें. जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वही बताया जाएगा. तो पर्सनल लाइफ के लिए मून कार्ड है जो कि शो कर रहा है दैट यू आर रियली इनटू दीज थिंग्स. सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, हेयर, स्किन, योर मेंटल हेल्थ, you're sleeping well. आप नए मैट्रेसेस खरीदते हैं, ऐसे मैट्रेस जो स्प्रिंग वाले हो या बहुत अच्छी क्वालिटी के हों. ऑलराइट, क्वालिटी लाइफ पर आप फोकस करते हैं. शायद अभी के टाइम पर आप फ़ोन खरीदते हो महंगे महंगे, 1-2 एप्पल का फ़ोन आई थिंक 2 लाख तक का तो आ ही जाता है, या 150-70 तक का तो आ ही जाता है. तो इतने का आप मे बी मैट्रेस खरीद रहे हैं 2-3 years लेटर, क्योंकि आप क्वालिटी लाइफ चाहते हैं. तो फिर इन चीज़ों पर स्पेंड करते हैं, क्वालिटी चीज़ों पर स्पेंड करते हैं अपना मनी, जिससे आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आ सके, आपकी एनर्जी, आपकी भाई फिटनेस ऑफ द बॉडी पर कुछ आ सके. क्योंकि जो चीज़ साइंस नहीं करके दिखा सकती वो चीज़ एनर्जीज़ करके या यूनिवर्स करके दिखा सकता है. ऐसी भी कुछ डिजीज़ होती है जिसके कारण एक इंसान बहुत सफ़र करता है और उसको उसका नहीं मिल रहा होता राइट मेडिसिन इन एलोपैथिक, आयुर्वेदा और इवन होम्योपैथी. तो you know, you go to some Reiki healer, crystal healer, and they do your healing and you're healed just in few weeks, and you're feeling shocked, you're shocked that how could this happen. You went to the best doctors and whatnot. So आप ध्यान देते हैं अपनी एनर्जीज़ पर, अपनी एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं करते, राइट डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं. आप काफ़ी कॉन्शियस इंसान बन रहे हैं 3 years from now. यहाँ पर आपके फिजिकल या मेंटल हेल्थ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन. वी हैव 8 of coins. 8 of coins शो करता है आप अपनी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हैं. आप चाहते हैं कि अब एक अच्छी स्लीप हो, आप चाहते हैं मेरा एक फिटनेस रूटीन हो, आप चाहते हैं कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ करता रहूँ या करती रहूँ. तो आप इन चीज़ों को लेकर जागरूक हैं. आपके लिए अमीरी गुड हेल्थ है, गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है, फ्रेश एयर है. तो आप लोग घर लोगे, पर हो सकता है पहाड़ों में लो, माउंटेन्स में घर लो. वीनस मार्स का जब कंजंक्शन होता है, वीनस मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हैं, 5-9 प्लेसेस फ्रॉम ईच अदर हैं, तो पहाड़ों पर घर लेते हैं ऐसे लोग, या पहाड़ों में रहते हैं, कंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, कंटोनमेंट एरिया के पास रहते हैं. ऐसे फ्लैट एरिया में रह सकते हैं जहाँ पर शायद पहले माउंटेन्स हों. सो ऐसी जगहों पर आप रहो, दिस विल हैपन. जहाँ फ्रेश एयर हो वहाँ पर रहना आपको ज़्यादा पसंद आएगा. जहाँ नेचर की ब्यूटी है वहाँ पर रहेंगे, ये दिखता है, क्योंकि आप क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं. आप वो रैट रेस का पार्टी नहीं है 3 years from now. पाइल नंबर 2, आप चाहते हैं भाई मेरे लिए अमीरी की डेफिनेशन, वेल्थ की डेफिनेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. आई वॉन्ट गुड मनी इन माई बैंक अकाउंट, बट आई एम नॉट रियली क्रेजी अबाउट इट. आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई माई लाइफ. आई एम नॉट ग्रीडी. So I will give jobs to people so that I don't have to do everything on my own, and I can live my life smoothly with good health, mental and physical good health. तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपका फंडा यहाँ पर लाइफ का नज़र आ रहा है, और ऐसी लाइफ आप जिएंगे भी ज़रूर 3 years from now. Last but not the least, पाइल नंबर
2 के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन. सो आपके अंदर पाइल नंबर 2, यू गाइज हैव दिस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, वही रैट रेस वाली एनर्जी कि भाई बैंक में इतने पैसे होने चाहिए, समय बचाओ, समय जो है काम पे लगाओ, ऑल राइट, अच्छे से अच्छी सिटी में जो है अपना घर बनाओ, डाउनटाउन में अपना घर बनाओ, सो दैट यू नो ऑफिस, स्कूल, मार्केट हमारे नियर हो. वी डोंट वांट फ्रेश एयर, वी वांट टू जस्ट लिव इन द डाउनटाउन बिकॉज इट्स वेरी ईजियर टू गेट थिंग्स. अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो हॉस्पिटल भी पास. अरे भाई तबीयत तो ख़राब होगी अगर डाउनटाउन में रहोगे, पोल्यूशन में रहोगे, तो इट्स अ स्लो किलर. जो गांव होते हैं, गांव भी नहीं, गांव भी आजकल सेफ़ नहीं है. ऐसी जगह जहाँ नेचर बहुत है, जहाँ पर पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं. हवा में आजकल तो हवा में भी पेस्टिसाइड्स है मैंने सुना है, या वाटर में भी पेस्टिसाइड या ऐसे हार्मफुल केमिकल्स आ चुके हैं, तो गांव भी इज़ लाइक नॉट सेफ एनी मोर. पर ऐसी कोई तो जगह होगी ना जहाँ पर क्लीन एयर होगी, तो आप वहाँ जाकर रहना पसंद करोगे. चाहे हॉस्पिटल दूर है, चाहे आपका ऑफिस या वर्क प्लेस दूर है, या चाहे स्कूल थोड़ा दूर है, यू आर ओके विद इट, यू आर ओके विद इट. यू से कि अगर जान प्राण रहे तो थोड़ा सा ट्रैवल करके चले जाएंगे. और जब आप वैसे भी एक नेचर के अराउंड ज़्यादा रहते हो, यू डोंट नीड अ हॉस्पिटल, यू डोंट नीड अ केमिस्ट टू बाय योर यू नो मेडिसिन्स एंड ऑल. सो ये जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके अंदर है, जो आप फील भी करते हैं कि आप इस रैट रेस का पार्ट बनते हैं, समय को बचाने में लगे रहते हैं, समय मेरा पढ़ाई में या मेरे करियर में सबसे ज़्यादा रहना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़त्म है, ये आपका कहीं ना कहीं प्रेजेंट है. 3 years फ्रॉम नाउ ये जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है ये ख़त्म होती है. यू रियलाइज़ कि लाइफ असल में क्या है, मुझे असल में क्या चाहिए. लोगों ने या दुनिया वालों ने मुझे सिखाया है कि पॉश एरिया या बहुत ही मतलब डाउनटाउन में घर वो बेस्ट होता है, या खूब सारे पैसे बहुत अच्छे हैं. किसी ने ये नहीं सिखाया कि मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट. किसी ने ये नहीं सिखाया कि फ़िज़िकल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट. किसी ने ये नहीं सिखाया कि एक सुकून क्या चीज़ है, क्योंकि शायद वो उन्होंने खुद नहीं फील करा. So I've realized that I don't want to be in this rat race. So you remove yourself from this 3 years from now. You have this luxury to remove yourself from this life and move into a life of peace, tranquility, and luxury, real luxury. So this is what we are getting. All right. जब हम थोड़ा सा बाहर आउटर भी घर लेते हैं तो थोड़ा सस्ता भी मिलता है, वो प्लॉट भी सस्ता मिलता है. ऑफ कोर्स उसको घर को बनाने में पैसा और टाइम दोनों लगता है. एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड दिस इन द नेक्स्ट 3 years. आई सी इलाइट क्लास आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं. सो या दिस इज़ समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. सो दैट्स वंडरफुल. एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई फील के वीनस मार्स कंजंक्ट होंगे या वीनस मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे. आई सी के मार्स या फिर वीनस या फिर जुपिटर, इनमें से कोई एक प्लानट आत्मा कारक प्लानट होगा, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees. इट कैन बी मार्स, वीनस और जुपिटर. और जुपिटर मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये भी शो करता है दैट यू आर गोना बी डेवोटीज ऑफ हनुमान, नरसिम्हा. यू मे लिव नियर अ हनुमान टेम्पल और अ नरसिम्हा टेम्पल. अगर मार्स जुपिटर कंजंक्ट है, मार्स जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 places अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो आप फिटनेस कॉन्शियस लोग होगे, जिम विम जाओगे, एक्सरसाइज ज़रूर करोगे, ये यहाँ पर शो होता है. ऑल राइट. एंड यहाँ पर जुपिटर वीनस का कंजंक्शन है, जुपिटर ट्राइन फ्रॉम वीनस है, तो शो करता है पैसे की दिक्कत आपको लाइफ में नहीं होगी. अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो माँ बाप के पास पैसे होंगे, संभव बताते नहीं होंगे, होंगे उनके पास पैसे. जब वीनस जुपिटर कंजंक्ट होते हैं या ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, ऐसा इंडिविजुअल भाग्य में पैसा लिखवा कर आया होता है, चाहे माँ बाप जितना मर्जी कह दें कि पैसे नहीं है, उनके पास खूब पैसे हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ मनी. और क्योंकि आप उस घर में पैदा हुए हैं तो आप वारिस हैं, यानी आपका जो माँ बाप का है वो आपका है. या फिर आफ्टर मैरिज आपके पास बहुत सारा मनी आता है. दिस कैन इवन हैपन, बट यू विल नॉट हैव इशू रिगार्डिंग मनी.
पर आप पैसे खर्चेंगे भी बहुत, ये भी दिखता है जुपिटर वीनस कंजंक्ट है तो। स्पेशली वीनस 12th हाउस में है या पाइसिस साइन में, तब आप बहुत सारे पैसे खर्चेंगे। अगर आप एक मेल हैं और आपका वीनस 12th हाउस में या पाइसिस में है तो आपकी वाइफ बहुत पैसे खर्चेंगी, पर पैसे की कमी नहीं होगी। और पैसे खर्चने चाहिए जिसका वीनस स्पाइसेस में है 12th हाउस में, अदरवाइज वो पैसे डॉक्टर को चले जाएंगे, हेल्थ इश्यूज़ में चले जाएंगे। तो पैसे खर्चो, ये अच्छी बात है। वीनस अगर पाइसेस में, वीनस 12th हाउस का है तो पैसे खर्चने चाहिए और आएंगे पैसे, पैसे का एक साइकिल बनेगा। सो दैट्स द थिंग। सो यहाँ पर साइंस की अगर हम बात करें तो जैसे इवन स्कॉर्पियो साइन हो गया, सजिटेरियस हो गया, पाइसिस हो गया, इवन आई वुड से कैंसर साइन हो गए, कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे। तो कैंसर में पुनर्वासु पुष्य अश्लेषा, स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, सेजिटेरियस में वी हैव मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, पाइसिस में वी हैव पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1 D12 या D9 वंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। All right, so that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra only reading. You can book yourself a reading from a website. You can buy these bracelets for yourself or for your loved ones, and right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So you chose the 8 of cups card here, or you picked this pile because aapka birthday 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है आपका बर्थडे किसी मंथ में. So let's get started. Let's time travel. 3 years from now आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, 3 साल बाद आपके लिए क्या हो रहा है. Let's time travel. So we have the unrest card here. All right. Okay. Then we have inner child card. Wonderful. And let me pull some more cards here from this deck. Pile number 3, their life 3 years from now. We have being in flow. I am the flow of the universe. Cherishing self. I accept and love myself. So what I see is that you are very real. You are comfortable in your own skin. And you're doing things which you always wanted to do as a child. Alright, maybe you were that child who wanted to buy some toy, but your parents were unable to afford that for you. And 3 years from now, you're buying that thing. Because that's what your inner child wanted. Maybe 3 years from now, you buy this electric scooter या फिर कोई skateboard. Because finally you have time to, actually you can even buy it right now. Maybe many of you can literally buy it right now. But 3 years from now you have time to actually use it. I see. बच्चों के पास बहुत time होता है. Alright. 3 years from now you also have a lot of time for yourself to do what you always wanted to do. And you're wearing, I would say you're wearing the clothes you always wanted to wear. I mean, wearing the clothes which you like, it's a bare minimum thing. But maybe you are not allowed to wear the clothes which you want to wear. And 3 years from now, you have this liberty, you have this freedom to wear whatever you want to wear. और जो आपके inner child या जो आपके childhood wounds हैं, वो कहीं ना कहीं heal हो पाते हैं 3 years from now. जो childhood desires थी, जो पूरी नहीं हुई थी, वो आप complete कर पाते हैं 3 years from now. And I do see that 3 years from now you're traveling to faraway places, you're exploring different cultures, different countries, and you're cherishing your life. You are, enjoying the luxuries of life. All right. You realize that having time for a meal is a luxury. When I was in school, we just used to have like 30-minute break. शायद वो हर स्कूल में ऐसा ही होता होगा. उन 30 minutes में I used to have my lunch
मतलब 5-10 मिनट्स में मैं बहुत क्विकली खाना खाती हूँ. आई हैव मार्स इन द सेकेंड हाउस, तो मैं बहुत जल्दी खाना खाती हूँ. ऊपर से राहु भी कनेक्ट होता है मेरे मार्स से, तो आई एम रियली अ क्विक ईटर. और मैं जल्दी लिखती थी, जल्दी अपने, क्योंकि मैं स्कूल ज़्यादा जाती नहीं थी, हफ्ते में 3 या 4 बार, दैट्स इट. बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार हफ्ते में मैं आई यूज्ड टू गो टू स्कूल. मैं जाती ही नहीं थी, मेरे को जाना ही नहीं पसंद था स्कूल. सो इतना सारा पेंडिंग काम हो जाता था, तो उस 30 मिनट की ब्रेक में 5-10 मिनट्स में खाना खा लिया. और फिर इतना सारा जो 3-4 पेज लिखवाए होते थे टीचर ने पिछले दिन के, वो भी मैं लिख लेती थी इतना फास्ट. और कुछ थोड़ा वॉशरूम भी जाना होता था और बच्चों की इतनी भीड़ होती थी, तो उसमें वो काम भी कराना. ऑलराइट, सो एकदम जैम पैक्ड टाइम होता था. एंड आई यूज्ड टू फील कि आई यूज्ड टू थिंक कि कब वो एक समय आएगा मेरी लाइफ में जब मेरे पास समय होगा टू ईट अ प्रॉपर मील, दैट टू इन अ स्लो मोशन, मतलब थोड़ा स्लोली आराम से कब खाऊं. क्योंकि एट टाइम्स मेरे को याद आता है स्कूल में मैं इतना फास्ट खाती थी कि मेरे गले में भी अटक जाता था, बट आई स्टिल यूज्ड टू लाइक ठूस ऑफ आई यूज्ड टू स्टिल ईट. दैट वाज मी. एंड व्हेन आई लेफ्ट स्कूल तब भी ऐसी भाग दौड़ लगी रही. एंड आई वुड से कि अभी कुछ टाइम से ही जो है लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया जहाँ आई कैन ईट, I can have slow mornings, I can do things in a slow manner, and it feels so nice. And I feel that this is real luxury. शायद जो मुझे समझाया गया था, सिखाया गया था कि पैसे ही सब कुछ है, I don't feel it's everything. It is important, definitely a very important thing. But now I've realized like having the liberty to eat slow, to do things in a slow manner is so nice. It's a privilege. Not everyone they don't have this kind of privilege. And having your meal on your favorite plate is like one of the best things. ये तो मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है. Since I was a child, मेरा एक अपना ग्लास होता था, अपना प्लेट होता था. ये चीज़ है कि अच्छी प्लेट में ही खाना. So that's the kind of habit I have. And again I feel that this is a luxury. It's a luxury. Every now and then buying a new cup, buying a new plate, जो कि आप everyday basis पर use कर रहे हो, rather than buying something, some name brand clothing, some name brand watch, some name brand bag. You can buy that too, but you cannot use it every day. है ना, आप बैग लेकर हर रोज़ जो है क्या ही फ्लॉन्ट करोगे, एक ही घड़ी कब तक पहनोगे. बट जो प्लेट है जो रेगुलर यूज़ हो रहा है उस पर इन्वेस्ट करना इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट. दैट्स बेसिकली रियल लग्जरी. दैट्स द एक्सपीरियंस. सो खाने से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है. तभी आप अपना स्टारबक्स की कॉफ़ी, CCD की कॉफ़ी, मैं तो कहती हूँ CCD इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंसिव थिंग अकॉर्डिंग टू मी. 300 रुपये की कॉफ़ी. सो you know like these are ये experience है. I've now realized कि एक experience है to sit there and have that coffee. So I do see 3 years from now you're having that experience. You have time, you have energy, you have money to experience these luxuries, to sit in a good cafe with a view and having that tea or coffee, wearing nice clothes of course. बट फोकस यहाँ पर ना हर रोज़ क्वालिटी लाइफ पर है. एक दिन क्वालिटी लाइफ पर नहीं है कि संडे का दिन है क्योंकि 6 दिन मजदूरी करी है, अब 7वें दिन हमने लग्जरी. ये थोड़ा ना लाइफ है. हर रोज़ राजा की तरह शान से जीना है, ये लाइफ है. दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू विल डू in the next 3 years. And 3 years from now you may even make this a lifestyle. कि जो कपड़े पहनने हैं, जो खाना खाना है, जैसे खाना खाना है, बड़ा रॉयल्टी से खाना है, बड़ी शान से खाना है और शान से जीना है. बिकॉज हर दिन एक जैसा नहीं होता. एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे एंड इट्स अ चांस टू रीलिव योर लाइफ. एवरी डे इज़ लाइक अ चांस लाइफ गिव्स यू टू रीलिव इट. यू आर द वन हु मे स्पॉइल इट. यू आर द वन हु इज़ गोना make a memory out of it, a good memory. So I do see कि 3 years from now आप हर दिन बड़ा शान से जीते हो, हर दिन एक राजा की तरह जीते हो, हर दिन आप वो काम ज़रूर करते हो जो आपको खुशी देता है. ऐसा एक काम तो आप ज़रूर करते हो जो आपके इनर चाइल्ड को फुलफिल्ड महसूस कराता है. सबके अलग तरीके हैं. शायद बचपन में आपको वीडियो गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता था बट मम्मी खेलने नहीं देती थी, आंखें ख़राब हो जाएगी, पढ़ना भी है.
नाउ यू हैव द लग्जरी 3 years फ्रॉम नाउ और नेक्स्ट 3 years में आप कोई ना कोई गेम खेल के ही सोते हो. ऑल राइट, सो इट मे हैपन कि GTA आ जाए नेक्स्ट जो भी आनी है 3 years में. दिस कैन इवन हैपन. तो बेसिकली यू आर लाइक रीलिविंग सर्टन थिंग्स. मे बी यू जस्ट बाय GTA Vice City बिकॉज आप बचपन में खेलते थे. ऑल राइट, सो नाउ यू आर you got your hands on it and now you are playing that game and you're feeling very nice. So हर रोज़ कुछ ना कुछ शान वाली चीज़, कोई ना कोई राजा वाली चीज़, कोई ना कोई लग्जरी चीज़ आप कर रहे हैं कि उसको अपना हैबिट बना रहे हैं कि मैं मज़दूर नहीं हूँ, मैं एक अच्छा सम्मानित जीवन जीने आया हूँ इस धरती पर और मैं ऐसा जीवन जी के रहूँगा. तो आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हो. यू डोंट रियली नीड बिग मनी टू इन्जॉय लाइफ. ऑल राइट, इफ़ यू थिंक कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी मैं इन्जॉय करूँगा लाइफ को, नहीं, ऐसा नहीं है. हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाए, फिर आप बीमार पड़ जाओ, आप लाइफ को इन्जॉय ना कर पाओ. एनीथिंग कैन हैपन इन दिस डे एंड एज. लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट्स लिव लाइफ राइट नाउ. जो आप काम कर रहे हैं उसको करते चलें, पर साथ में जीवन भी जिएं. ये आप सीखते हैं नेक्स्ट 3 years में, ये दिखता है. देन वी हैव मून. इट्स अ साइकिल्स. सो मून यहाँ पर नरिशमेंट को शो करता है, गुड फूड को रिप्रेजेंट करता है. मून मदर को भी सिग्निफाई करता है. तो मदर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? दैट मदर शुड बी इमोशनली अवेलेबल टू अस एंड मदर प्रोवाइड्स अस फूड. मदर प्रोवाइड्स अस द फर्स्ट नरिशमेंट. मदर जो इस वजह से मून मिल्क प्रोडक्ट्स भी होता है. मैनी ऑफ यू कैन एक्चुअली बी लैक्टोज इंटॉलरेंट, ऐसा हो सकता है यहाँ पर. और मून 8th हाउस का हो सकता है, या मून राहु का कंजंक्शन हो, मून केतु का कंजंक्शन हो, मून ट्राइन फ्रॉम राहु या केतु. दिस कैन हैपन. मून बेसिकली हियर इज शोइंग मी 3 years फ्रॉम नाउ यू आर enjoying every season, all right, of the year, whether it's summer, winter, spring, autumn. You're enjoying almost every season and that's a wonderful thing. किसी को गर्मी बहुत गंदी लगती है, किसी को सर्दी बहुत अच्छी लगती है, और किसी को सर्दी में बहुत ही ठंड लगती है तो वो कहते हैं सर्दी ना है, सर्दी ना है. बट यू आर बिकमिंग फिजिकली ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कि आप हर सीज़न को इन्जॉय कर पाते हो. ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में तो है. कि कई लोगों को इतनी गर्मी लगती है कि वो इतना चिड़चिड़े हो जाता है गर्मी में और कहते हैं कि गर्मी चली जाए. और कई लोगों को सर्दी इतनी बुरी लगती है क्योंकि वो बीमार रहते हैं सर्दियों में, उनका शरीर दुखता है या ऐसा जो बॉडी है वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उनके अपने कुछ रीजंस हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं. तो हर सीज़न को इन्जॉय कर पाना इटसेल्फ ये बहुत बड़ी बात है. तो ऐसे कि आप फिजिकली भी बहुत फिट होते हुए नज़र आ रहे हैं 3 years फ्रॉम नाउ. यू आर इन्जॉइंग एवरी सीजन एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट. यू आर एबल टू इन्जॉय एवरी सीजन एंड यू आर एबल टू फील एवरी सीजन. कई जगहों पर सर्दियाँ इतनी होती ही नहीं है, कई जगहों पर गर्मियाँ इतनी होती ही नहीं है. पर अब तो क्लाइमेट चेंज है, चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो जिस जगह पर सर्दी नहीं भी होती है वहाँ पर भी सर्दी पड़ जाए, कैन हैपन. सो आप हर सीज़न का इन्जॉय करेंगे. यहाँ शो होता है आपका बॉडी फिट होता हुआ नज़र आ रहा है. 3 years फ्रॉम नाउ यू हैव अ वेरी वेरी फिट बॉडी. तो कुछ आप बॉडी वाइज भी फिटनेस ऑफ द बॉडी के लिए भी कुछ चीज़ें करें. मैं भी जिम विम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट 3 years में आप अपने बॉडी पर भी, फिटनेस ऑफ द बॉडी पर भी ध्यान देते हैं. ये यहाँ पर दिख रहा है. यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. यू आर ट्रीटिंग द बॉडी लाइक अ पैलेस टू सोल एंड यू लव योर सेल्फ. सो आप अपने खाने पीने पर भी ध्यान देते हैं 3 years में कि भाई मैं ऑर्गेनिक खाना खाऊँ, या मैं फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल खाऊँ, या अच्छा खाना खाओ, या वीगन डाइट लूँ, या जो भी है ना, आप ऐसा भी कुछ करें. एंड 3 years फ्रॉम नाउ ये आपका लाइफस्टाइल बन चुका है अच्छी चीज़ें खाना, अपना हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल लेना, एंड चीट मील्स भी करना एट टाइम्स. या मैनी ऑफ यू आर एक्चुअली लर्निंग हाउ टू कुक एक प्रोफेशनल वे में, सो दैट आप अपने आप को अच्छा खाना खिला सको. क्योंकि बाहर वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल दे आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट दे आर यूजिंग, आर दे गुड और नॉट. सो maybe you are trying to make home cooked meal restaurant style, but of course the healthy version. So ऐसी आप चीज़ें सीख रहे हैं नेक्स्ट 3 years में. और 3 years फ्रॉम नाउ आप बहुत अच्छा खाना बनाना शुरू कर लेते हैं, सीख जाते हैं अपने लिए खाना बनाना अच्छे से. सो खाना बनाना इज़ अ स्किल. ये आना चाहिए हर किसी को. इसमें लड़का लड़की की जेंडर की बात नहीं है. खाना तो हर कोई खाता है. यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट करियर. सो वी हैव 7 of Swords. 7 of Swords here shows me that you are becoming someone who know what you are doing, and you don't
यू वैल्यू योर सेल्फ, यू वैल्यू योर स्किल। आप कम पैसों में काम नहीं करना चाहते, सीधी सी बात है। आप कहते हो मेरे को पैसों का बहुत ज़्यादा लालच नहीं रहा। पहले लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, बट 3 years फ्रॉम नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि पैसा सब कुछ नहीं है। आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड एज वेल। तो मैं क्वालिटी का काम करता हूँ, तो अगर मेरे को अच्छे पैसे मिलेंगे तो मैं काम करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। कुछ ऐसी सोच आपकी यहाँ नज़र आ रही है। मतलब 3 years फ्रॉम नाउ, बहुत 3 years में आप नेक्स्ट 3 years में बहुत मेहनत कर लेते हैं और खूब पैसे कमा लेते हैं, तभी आपके पास ये लिबर्टी है काम को एट टाइम्स नो कहने की। ऐसा नहीं है दैट यू आर लेज़ी, बट ऐसा डेफिनेटली है कि आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। हार्ड वर्क कर करके आप थक गए हैं, तो स्मार्ट वर्क भी वही कर सकता है जो जिसने हार्ड वर्क किया होगा पहले, तभी उसे रियलाइजेशन होगा कि हाँ अब जब मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। ये तो बहुत सारे कार्ड्स निकल आए यहाँ पर जो है फाइनेंसेस के बारे में। सो वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन हेयर शोज़ मी कि आप अपने मनी को एक बहुत डिफरेंट वे में यूटिलाइज़ करते हैं, बहुत अलग तरीके से अपने मनी को यूटिलाइज़ करते हैं। शायद दूसरे लोग किसी अच्छी सिटी में, बढ़िया सिटी में, डाउनटाउन में घर खरीद लेते हैं। डाउनटाउन ऐसी जगह है जहाँ पर मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, हर चीज़ बहुत नियर है, पर उस अकॉर्डिंग बहुत ट्रैफिक भी है, पोल्यूशन भी है, थोड़ा छोटा घर है, डब्बी जैसा घर है ना। लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेयर यू आर इन्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ नेचर बहुत है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर एयर टॉक्सिक नहीं है। वैसे आजकल तो विलेजेस में भी एयर टॉक्सिक हो गई है, पानी ख़राब हो गया है क्योंकि पेस्टिसाइड्स जा चुके हैं अंदर, तो लोगों को बहुत बीमारियाँ उस कारण हो रही है। तो आप कोई ऐसे अपने लिए सेफ़ स्पेस खोज लेते हो 3 years में, रिसर्च कर करके कि ऐसी कौन सी जगह है जो भी स्टिल अनटच्ड है, स्टिल उस जगह में दम है, उस जगह में सुंदरता है, उस जगह का वेदर अच्छा है, या उस जगह में पोल्यूशन नहीं है, या बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो। मतलब जो लोगों का सोच है कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आप वहाँ तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको क्वालिटी लाइफ चाहिए। आप उस रैट रेस का पार्ट बनना ही नहीं है। यू डोंट वॉन्ट टू बी सो डेवलप्ड कि जहाँ आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट हो जाए। आप अपने ऊपर वो स्टैम्प नहीं लगवाना चाहते सोसाइटी का कि भाई कि आप बहुत इस्टेब्लिश्ड है, वो स्टैम्प आप लगवाना ही नहीं चाहते हो। एंड यू डोंट वांट टू लाइक be a part of the society. I feel that you have a very again different mindset, different perspective towards life. So आपका सर्कल भी छोटा है 3 years from now. आपका घर आपका सेफ प्लेस है, और आप वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं करते, स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं जिनको आप पसंद नहीं करते. यू डोंट लेट दोज पीपल एंटर योर सेफ प्लेस, एंटर योर होम. बट आपका मनी अनऑर्थोडॉक्स जगहों पर खर्च होता है, अनकन्वेंशनल जगहों पर खर्च होता है, क्वालिटी लाइफ पर खर्च होता है. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग, एंड यू हैव द मनी टू स्पेंड दैट. आई मीन पैसे नहीं होंगे तो क्या खर्च करोगे, पैसे यहाँ पर हैं तभी तो ये खर्चा हो रहा है. देन अबाउट योर पर्सनल लाइफ आई सी दी 10 of Wands. 10 of Wands यहाँ पर शो करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेक केयर करना. तो आप सेल्फिश इंसान तो नहीं है, आप अपने परिवार का तो पूरा टेक केयर करते हैं. परिवार के फाइनेंसेस का, फाइनेंशियल जो उनकी नीड्स है उनका पूरा टेक केयर करते हैं. अपने सिबलिंग्स की एजुकेशन या अपने पेरेंट्स की हेल्थ, अपने पेरेंट्स के जो होप्स विशेस डिज़ायर्स हैं आपसे, आप उनको डेफिनेटली फुलफ़िल करते हैं, ये यहाँ पर दिखता है. सो ये परिवार के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरा ज़रूर करते हैं, ये दिखता है. आपके पेरेंट्स आपको देखकर बहुत प्राउड हैं, आपके लिए बहुत खुश हैं, आपसे उनको शिकायत नहीं है, उनको आपसे शिकायत नहीं है. अबाउट योर फिजिकल मेंटल हेल्थ वी हैव 10 of Cups. 10 of Cups इज़ अ वंडरफुल कार्ड. 10 of Cups शो करते हैं खुशी, abundance, satisfaction, mentally, physically doing really well. कप्स की एनर्जी फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो आप बहुत खुश है अपने जीवन से. आपको शिकायत नहीं है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए. आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते, बिकॉज यू फील लाइक कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं, मैं वैसे ही बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ. और शायद पाइल नंबर 3 आपके वो बड़े बड़े सपने नहीं हैं जो दूसरों के शायद हैं. बड़े बड़े सपने इन द सेंस कि
I want to become the next president or prime minister, or I want to become the next Amitabh Bachchan, or I want to become the next big YouTuber, influencer. Maybe you don't have these kind of desires. आपकी worldly desires नहीं है as such. आप एक सिंपल लाइफ चाहते हैं जहाँ शायद आपको लोग ज़्यादा जाने ना, वो आपको ज़्यादा बेटर फील होता है. सो आप एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहाँ गुड हेल्थ हो, जहाँ पीस ऑफ माइंड हो, टेंशनें ना हो, लोन्स ऊपर ना हो, और ऐसी लाइफ चाहते हैं जहाँ पर आप नेचर को फुली इंजॉय कर सकें, और आपकी जो बचपन की ख्वाहिश है वो आप ज़रूर पूरी कर सकें. जैसे कि स्केटिंग करना, जैसे कि स्केटबोर्डिंग करना, जैसे कि पार्क में जाना, जैसे कि खेलना, प्ले डेट पर जाना, ये सब आपके शौक़ है. और ये आप पूरा ही ज़रूर करेंगे, ये दिखता है 3 years from now. You have the liberty. और so in the world full of adults, you are the Shinchan or you are the small child, but in a adult body. Last but not the least, we have manifestation. जैसा आप सोचेंगे वैसी चीज़ें आप पाएंगे. And with the manifestation card, we see sunflower as well, sunflowers, and we see good health. We see the chakras are working. And like the heart chakra, the Mooladhara chakra, center वाले चक्रा को क्या कहता है, forgot. But like whatever the chakras are, all right, वो चक्रास आपके वर्क करते हैं क्योंकि आप उन पर वर्क कर रहे हैं. आप कहीं ना कहीं माया से, मायावी दुनिया से थोड़ा अलग हैं, हटकर हैं. आप अलग है दुनिया से. And you're feeling very positive, you're feeling lucky that you're not in the rat race, you have gift of time with you, you are feeling very good. 3 years from now, you're with nature, you're feeling very positive, you're feeling healthy. You are feeling tension free, you don't have loans on yourself. So जैसा आप सोचते हैं वैसी लाइफ आप क्रिएट करते हैं अपने लिए. पाइल नंबर 3, ये यहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है. तो जैसी आप सोच रखेंगे वैसे आप लाइफ क्रिएट करेंगे अपनी 3 years फ्रॉम नाउ. तो सोचिए, अच्छा ये आपके लिए गाइडेंस भी है. जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे, जैसा आप विजुअलाइज करेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा आपकी प्रैक्टिकल रियलिटी होगी, ये दिखता है. ऑल राइट, सो दैट वाज प्रीटी मच इट. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जैसे साइन, जैसे मून हो गया, जैसे सैटर्न हो गया, जैसे आई वुड से मरकरी हो गया, इनमें से कोई एक प्लानट आत्मा कारक प्लानट होगा, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees. इट कैन बी मून, मरकरी और सैटर्न. सैटर्न सेकेंड हाउस में हो सकता है, असेंडेंट में हो सकता है, या फिर मरकरी जो है असेंडेंट में हो सकता है, या मरकरी जो है जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर मरकरी कैन बी ट्राइंड फ्रॉम ईच अदर, जो कि आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाता है, जो कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनाता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग या ईजीली आप कर लेते हैं. दूसरों के जो है मरकरी अगर असेंडेंट में है, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजीली कर लेते हैं. अपने जब खुद प्रॉब्लम में फंसते हैं फिर अपने आप को एडवाइस नहीं दे पाते आप, ये भी बात है. सो यू आर समवन जो बहुत एक क्विक लर्नर है, अगेन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है. तो ये प्लेसमेंट्स होंगी. जुपिटर मून का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, जो कि शो करता है कि यू आर गोना ट्रैवल अ लॉट इन लाइफ. योर मदर इज गोना बी रिलीजियस, स्पिरिचुअल इन नेचर. शो करता है दैट यू विल डील विद लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. इफ यू आर हैप्पी, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी. इफ यू आर सैड, यू आर एक्सट्रीमली सैड. अगर जुपिटर मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, जुपिटर मून कंजंक्ट टुगेदर है, तो जैसे साइन ऑफ टॉरस हो गया, जेमिनाई हो गया, लियो हो गया, और साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. मृगशिरा स्पेल करता है जेमिनाई में आर्द्रा, पुनर्वसु. लियो में वी हैव माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. और कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या कोई और प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे इन साइंस एंड नक्षत्रों में. सो दैट वाज प्रीटी मच इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You
can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.